Okay, a very good morning to all of you guys. As such, this is our first official lecture of MA paper of ACCA, which is our F2 paper. But we had met in the last day before yesterday. We met in the class. Not all, but many of you met me. Approximately 7, 8 kids were there offline. And today we mutually decided that we will have the session online. So first of all, I'll request everybody to switch on the cameras. One rule of my class, whenever we are online, everybody will be in front of the professor, no hiding faces. So मस्त मेकअप वेकअप करके बैठने का, करेक्ट है ना गार्गी? या मस्त मेकअप करके बैठने का, so that you don't feel shy of showing me your own face. Good. So a very good morning guys. Yeah, वो live lecture का feel आता है. So it hardly makes a difference if we are online or offline. It hardly makes a difference. So when you are in front of the professor, वो live lecture का feel आता है. सब लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं. And then it hardly matters whether we are on or off. Cool. So let me officially begin the session. That day we were talking for almost 1 hour 20 minutes, 1 hour 30 minutes approximately. मैंने वो सब introduction वगैरह आपसे किया. बातों बातों में I was teaching you also small concepts. If you remember, मैंने थोड़ा सा budget का बात किया था, because we were going through those important chapters that we are going to study in our MA paper. Okay, so I was officially told that approximately 23, 24, मोटा मोटी 25 बच्चे हैं. But as of now, I can see there are hardly 14, 13, 14. So there are few who has not yet come up because of exams. So exams है कुछ बच्चों की, I am aware of that. So now this will not be repeated. ये lecture उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो फिलहाल मुझे पहली बार ये recorded lecture देख रहे हैं. So ensure you check this recording and you get back to me for any doubts. I'm gonna start. I'll keep the lecture sweet and simple, where you understand few basic things which are not honestly related with much other concepts. तो आज हम कुछ ऐसा करेंगे जो काफी नया है, but ideally you will enjoy what I'm going to teach. So I'm gonna start with cost classification, दोस्तों, which is chapter number 2. Why not one, sir? Because it is very raw. I don't teach it as a chapter. हम ऐसे बहुत बार मौके मिलते हैं कि एक लेक्चर अगर 2 घंटे करेगा, लेकिन आज वो 1 घंटा 30 मिनट्स में खत्म हो गया. So I'll use those filler time of 20 minutes, 30 minutes for doing small. It's a complete theory, and it is not a good chapter to start with the first official lecture of ACCA for MA. So I'm going to start with the bang important chapter, which is chapter number 2, cost classification. Now, I don't want you to open your books for next 1 hour or so. I'll keep on doing a lot of bud. And I want you to be very alert as far as the learning part is there, because these concepts are very important. I repeat, whenever I'm teaching anyone the costing syllabus for the first time, नाम इस subject का दोस्तों management accounting है, but actually it is cost accounting. बहुत सारे cost accounting के chapters है जो हम पढ़ेंगे. So let us begin with the syllabus. Always my favorite example is to ask the kids when I have started teaching. Guys, now we'll understand few concepts of costing before we proceed, and that is the part of chapter number 2. दोस्तों, tell me or give me a reaction, those kids who have never eaten a Parle biscuit yet. पार्ले जी का जो 5 रुपए का ग्लूकोज का बिस्किट आता है, आपने आपकी लाइफ में कभी नहीं खाया, तो आप हैंड रेज करो ऐसा, सर आई हैव नेवर टेस्टेड अ पार्ले जी एवर. यू हैव अ राइट टू टॉक टू मी. पार्ले जी खाया नहीं है किसी ने तो हाथ ऊपर करो. कॉमन सेंस है, सबने पार्ले जी खाया रहेगा आज ना कभी तो. अच्छा, दूसरा सवाल, वो बच्चा हाथ ऊपर करेगा जिसने उसके लाइफ में पार्ले जी आज तक सिर्फ एक ही बार खाया, उसके बाद कभी नहीं खाया. सर एक बार खाया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, एकदम घटिया बिस्किट था, आई जस्ट डम्प्ड दैट बिस्किट एंड नेवर टुक इट इन माय हैंड इन माय माउथ. ऐसा कौन बच्चा जिसने पार्ले जी एक ही बार खाया है, उसके बाद कभी नहीं खाया? एनीबॉडी? नहीं, सबने 2, 3 बार 5 बार खाया रहेगा. आखिरी सवाल, वो बच्चा हाथ उठाएगा जिसको अभी तक पता है कि सर पार्ले जी ना, मैंने आज तक ना, मेरे लाइफ में मेरा उम्र 17, 18, 19 रहेगा, एवरेज एज ऑफ दिस बैच 17, 18, 19. 17 तो कोई नहीं रहेगा, 12वीं के बाद सब करते हैं, मतलब 18, 19, 20 का एवरेज एज रहेगा इस बैच का. वो जो भी तेरी उम्र है 18, 19,
तेरे आज तक की लाइफ में आपने जितनी बार पार्ले जी खाया है, यू रिमेंबर दैट, सर मैंने ना आज तक 3 बार खाया है, सिर्फ 3 बार। हाथ ऊपर करो जिसको पता है तूने आज तक पार्ले जी कितने बार खाया। कैन यू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू मस्ट हैव ईटन अ पार्ले जी? घर की बहुत बार खाया रहेगा, ट्रू। विश्वनाथ आपने बहुत बार पार्ले जी खाया रहेगा। आपको याद है आपने कितनी बार खाया था? नो, इफ यू आस्क मी द क्वेश्चन, इवन आई विल नॉट आंसर दैट, मुझे नहीं याद मैंने कितनी बार पार्ले जी खाया। अबे बहुत बार खाया है। पार्ले जी बोल, गुड डे बोल ब्रिटानिया का, या फिर बोरबॉन दैट क्रीम बिस्किट चॉकलेट वाला। कितनी बार, मैं आज भी भूख लगा ना, सबसे मैं फर्स्ट गो टू बिस्किट इज अ बोरबॉन बिस्किट। मुझे बहुत मजा आता है आज भी। और दूसरा ऑरेंज क्रीम। बचपन की आदतें बड़े होने के बाद छूटनी चाहिए, लिखा है क्या किधर? मैं आज भी मोबाइल पे वीडियो गेम खेलता हूँ। बीवी को बोलता हूँ, ए मला ना गेम खेला जाए थोड़ा वेल, डोंट डिस्टर्ब। क्यों? वाई टू चेंज दोस गुड हैबिट्स विच यू हैड? मैं मोबाइल पे क्रिकेट खेलता रहता हूँ। बीवी बोलती है बड़ा हो गया तू, मतलब बड़ा होने के बाद बच्चों वाली आदतें छूटनी चाहिए, लिखा नहीं है किधर। ऑल राइट, व्हाट आई वांट टू से इज, कमिंग बैक टू द टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, पार्ले जी ऐसा बिस्किट है जो वाइडली मार्केट में मिलता है। यू गो इन एनी लोकल शॉप, तो एक छोटे पान के दुकान में जा, जहाँ पान बीड़ी वगैरह मिलता है, बीड़ी मत बजा, बट विच पार्ले जी है क्या, दे विल से यस, बिकॉज इट इज द मोस्ट वाइडली सोल्ड एंड एक्सेप्टेड बिस्किट इन इंडिया। Those who cannot afford, touch wood, fingers crossed, those who cannot afford can stay alive with 3 Parle-Gs, one in the morning, one in the afternoon and one at night. हाँ, तेरे विटामिन और मिनरल्स के बॉडी की क्या हालत होगी वो नहीं पता, बट तू जिंदा पक्का रहेगा। 5 रुपया मॉर्निंग में, 5 रुपया दोपहर को, और 5 रुपए का पूरा बिस्किट रात को, 15 रुपए में मैं मेरा दिन जिंदा रह सकता हूँ। इंडियन सोल्जर्स डू ईट अ पार्ले-जी और दे हैव अ पार्ले-जी। वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा एक सीए दोस्त है, उसकी बीवी का सगा भाई, ही इज इन द इंडियन आर्मी, मतलब बहुत क्लोज रिलेशन, मतलब मेरा साला सॉर्ट ऑफ, मेरे दोस्त का साला इज इन द मिलिट्री। तो मेरे वो बहुत शेयर करता रहता है, बोलते हैं ये लोग वो सियाचिन ग्लेशियर वेशियर में बहुत सारा पार्ले जी हेल्थ ग्लूकोज वूकोज का बिस्किट्स रखते हैं। अ कॉमन मैन ईट्स पार्ले जी, रीजन बीइंग टू रीजंस, नंबर वन इट इज डैम चीप, नंबर टू इट इज हेल्दी। तेरे दादाजी ने भी पार्ले जी खाया रहेगा, गारंटी, बहुत ओल्ड बिस्किट है ये। व्हाई आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ पार्ले जी, बिकॉज इट इज वाइडली एक्सेप्टेड इन द मार्केट एट द प्राइस ऑफ पार्ले जी जस्ट ₹5। बरोबर है, 5 रुपया पार्ले जी का बिस्किट का कीमत है। दोस्तों, आई वॉन्ट टू आस्क यू, इफ पार्ले जी इज कॉस्टिंग ₹5, what is the price at which Parle G is making that biscuit? What is the price at which Parle G is making that biscuit? Parle G कितने में वो बिस्किट बनाता रहेगा? मैं बताऊं, ₹2 मैक्सिमम। ₹1 पार्ले जी खुद का प्रॉफिट रखेगा, ₹1 होलसेलर को देगा, और ₹1 वो रिटेलर को देगा। सो ऐसे वो ₹3 एक्स्ट्रा कस्टमर से, ₹2 उसका खर्चा, ₹1 होलसेलर को, ₹1 रिटेलर को, और ₹1 पार्ले का खुद का फायदा। Now Parle G earns a lot. Say tomorrow the cost of Parle G, which was ₹2, shoots up to ₹4। क्या हो रहा है गाइस? पार्ले जी का जो ₹2 का कीमत है वो ₹4 हो गया। डू यू फील पार्ले विल स्टिल बी एबल टू सेल द बिस्किट एट 5? अगर मेरी कीमत 2 से शूट होकर 4 हो गई, तो मैं पार्ले हूं, पार्ले का मैनेजमेंट हूं, विल आई बी स्टिल बी एबल टू सेल द पार्ले जी प्रोडक्ट एट ₹5 टू द कंज्यूमर्स? द बिग आंसर इज आई डोंट नो, यस और नो। But पकड़ ले, if तू we पार्ले need जी का extra मैनेजमेंट है, profit, तेरे को पता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। या गार्गी, यू कैन अनम्यूट। व्हाट यू विल डू, विल यू इंक्रीज द प्राइस टू 7, और विल यू स्टिल बेयर अ no. लॉस If एंड कीप the सेलिंग? parley अब manager क्या wants करोगे आप to, बताइए, या शूट। if he wants to keep it at 5, he can because he's already earning good enough. But if he wants to earn more profits, then he'll increase it up to 7. नाउ आई विल फर्दर आर्ग्यू टू व्हाट यू सेड। आपने बोला सर हम बहुत कमा लिए हैं, हम ₹5 में रख सकते हैं, बट आप ₹5 में रखोगे तो आप ₹1 तो लॉस में हो। कैसे बताऊं? ₹4 आपकी बनाने की कीमत, ₹1 होलसेलर का फायदा, वो बोलेगा मुझे तो मेरा ₹1 चाहिए, रिटेलर बोलेगा मुझे भी मेरा ₹1 चाहिए, पार्ले बोलेगा चलो आई एम अ वेरी एलिफेंट कंपनी, मैं हाथी कंपनी हूं, मैं मेरा खुद का ₹1 का प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दूंगा, आई विल सेल द प्रोडक्ट एट नो प्रॉफिट नो लॉस। बट फिर भी बेयर मिनिमम वो 6 में नहीं बेचेगा ना, वो ₹1 लॉस में रहेगा। एंड अंडरस्टैंड, लॉस हर आदमी एक लेवल तक बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद शटर डाउन, धंधा बंद। what you will feel, will they be still be able to, and if they sell at 5, उसने उखाड़ा क्या क्या क्या? मैं समाज सेवा करने का धंधा कर रहा हूँ, एम आई डूइंग बिजनेस फॉर सोशल सर्विस, आई वांट माय ₹1। और ये बड़ा बड़ा बिजनेस है, मतलब 130 करोड़ जनता
अगर पार्ले खाएंगे तो 130 करोड़ इंटू 1 रुपी बहुत पैसा है पार्ले के लिए। तो वो स्मॉल स्केल पे छोटा छोटा मार्जिन क्रिएट करता है, बट वो 8 आना 1 रुपया मुझे चाहिए। आई कैन नॉट बेयर अ लॉस, सो व्हाट आई विल डू, एनीबडी कैन आंसर, मैडम जी यू कैन ऑल्सो आंसर। क्या करेगा वो? कीमत बढ़ा दे 7 रुपया, द इजिएस्ट वे आई कैन हैव टू। हाउ मेनी ऑफ यू फील यस वी विल इंक्रीज द प्राइस टू 7 रुपीज? रिएक्शन बटन है आपके इधर, गो इन द रिएक्शन बटन गाइस एंड गिव मी अ थम्स अप। रिएक्शन बटन में थम्स अप दो कि कितने लोगों को लगता है कि आई इंक्रीज द प्राइस टू 7। एंड इफ यू हैव अ बेटर आइडिया देन दिस यू कैन शूट। आई वांट अ लाइव लेक्चर, तू बिंदास अनम्यूट करके मेरे से बात करना। ओके, पार्थ बोलता है मैं 7 करूंगा, दोनों पार्थ बोलते हैं मैं 7 करूंगा, ध्रुवी जैन ऋषि परमार। हाँ ठीक है, 6 और 6:30। ओके, गार्गी बोलते मैं भी बढ़ाऊंगी। अगर मैं पार्ले का ओनर रहूंगा ना दोस्तों, मैं कभी प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, नेवर। पार्ले का सबसे बड़ा यूएसपी है यूनिफाइड सेलिंग प्राइस, और वॉट वो यूएसपी बोलते हैं ना, कि वो क्यों प्रोडक्ट बिकता है, बिकॉज वो सस्ता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा है ये तो है ही, तो अच्छा तो ब्रिटानिया भी है, अच्छा तो डार्क फैंटेसी भी है सनफीस्ट का, अच्छा तो पार्ले का हाइड एंड सीक भी है, वो भी तो बहुत अच्छे है। इधर किधर लिखा है वो कचरा क्वालिटी और पार्ले जी अच्छे क्वालिटी का है? इज देयर एनीवेयर रिटन दैट पार्ले जी का जो डार्क फैंटेसी है, पता है आपको, वो चॉकलेट का डार्क फैंट, नहीं पार्ले जी का हाइड एंड सीक पता है आपको? यू मस्ट हैव रिटन अमेजिंग क्वालिटी आर हैविंग। सनफीस्ट का डार्क फैंटेसी वो जोरदार बिस्किट है, किधर लिखा है वो घटिया क्वालिटी का बेचता है? बिल्कुल नहीं, वो भी तो क्वालिटी जोरदार है, बट उसका और पार्ले के सेल्स में बहुत फर्क है। रीजन भी, पार्ले अच्छा और सस्ता भी है, एंड मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस हैव अ मंथली अर्निंग ऑफ मेयरली 16,000 पर मंथ। ये मैंने कुछ दिनों पहले, महीना भी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ रिसर्च सुन रहा था, एंड 130 करोड़ में से 50% लोगों का आमदनी पर मंथ एवरेज इन इंडिया इज जस्ट फैमिली इनकम। अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी फैमिली में, मतलब मैं घर आता हूँ, मेरी बीवी, मेरा मम्मी डैडी और मेरी बेटी, हम 5 लोग एक साथ रहते हैं, तो मैं घर पे महीने के सिर्फ 16,000 ला रहा हूँ, जिसमें बाकी 4 तो मेरे पे डिपेंडेंट है। 16,000, व्हाट अ इनकम इंडिया इज अर्निंग, 16,000। भाई 16,000 में मुझे 5 लोगों का घर चलाना है, then I cannot afford a hide and seek. I cannot afford a what sunfist dark fantasy. मुझे पार्ले जी और मारी खा के ही दिन चलवाने। That means पार्ले जी का चलने का एक बड़ा कारण है उसकी प्राइस। If पार्ले increase the price from 5 to 7, I am bound sure that the price is that the sales are going to fall down. Understand? जैसे मैं प्राइस 5 का 7 लेता हूँ ना दोस्तों, उसका सेल गिरेगा। लोग बोलेंगे भाड़ में जाए, पार्ले ने तो मैं टाइगर बिस्किट खाता हूँ ब्रिटानिया का, और कोई सब्सिट्यूट ढूंढता हूँ 5 रुपए में जो भी है वो। सो पार्ले विल नेवर थिंक टू इंक्रीज द प्राइस फॉर श्योर, ये आपके भेजे में आना चाहिए। सो नंबर 2 ऑप्शन क्या बचा? प्राइस तो 5 में ही बेचना है, 5 में बेचूंगा तो मैं लॉस में हूँ। लॉस में चल 6 महीना बेयर कर सकता, मैं पार्ले में एलिफेंट हूँ, हाथी हूँ मैं, हाथी, आई एम एन एलिफेंट कंपनी। ये छोटा मोटा 6 महीने के लॉस से मैं कुछ बर्बाद नहीं होने वाला। Bloody why the hell I'm bearing that loss? Because I'm sure that अब तक बाबा आजम के जमाने से पार्ले जी बना रहा था 2 रुपए में, क्या हो गया पिछले कुछ महीनों में कि पार्ले का प्राइस शूट हो गया है। आई विल गो फॉर अ कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मैं अगर 2 रुपए का बिस्किट 4 में बना रहा हूं, तो कुछ तो गड़बड़ मेरे मेरे कॉस्टिंग में हुई है, कुछ तो गड़बड़ मेरे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हुई है या रॉ मटेरियल मैनेजमेंट में हुई है, जहां प्राइजेस बढ़ चुके हैं। नीड टू फाइंड आउट द रीजंस। आज तक तो 2 रुपए में बना रहा था, ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ महीनों में कि डायरेक्टली डबल हो गया? 2 रुपए का 2 रुपया 10 पैसा हो गया, 2 रुपए 15 पैसा हो गया, ये हो सकता है। 2 का सीधा 4, तू बोलेगा 2 रुपए बढ़ गया, ऐसा मत सोच, 100% बढ़ा। अच्छा, 100% नहीं कॉस्ट बढ़ती कभी। इन्फ्लेशन विन्फ्लेशन दोस्त 4% है, गार्गी 5% पकड़ ले। फिलहाल चलो मैं एक्सेप्ट करता हूं, अप्रोक्सीमेटली 9% भी है इन्फ्लेशन, लो चीजें बढ़ रही है, बट 9%, मतलब 2 रुपए पे 9% ऐड कर, चलो अपन 10% करते तो भी 2 रुपए का 2 रुपया 20 पैसा होगा, अगर 10% किया तो 9% किया तो 18 पैसा बढ़ जाएगा। 2 रुपए का कीमत 4 नहीं होगा। Are you understanding? That means I need to go, I need to find out what is the problem that I have faced where the price of 2 has increased to 4.
इसके लिए मुझे कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट इज द मेन होल गोल ऑफ द सब्जेक्ट्स। आज पहला लेक्चर है अपना, ऑफिशियल पहला। उस दिन मैं इंट्रोडक्शन मारने कुछ लोगों के सामने आया था, तो कुछ लोग ऑनलाइन थे मुझे देख रहे थे, कुछ लोग ऑफलाइन थे जिन्होंने मुझे देखा है, कुछ लोगों ने अभी तक देखा नहीं जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरीज, ये मैं सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? बिकॉज देर इज अ शिफ्ट इन द मूवमेंट ऑफ कॉस्ट। आई नीड टू फाइंड आउट द रीजंस व्हाई द हेल माय कॉस्ट हैज चेंज्ड। बिकॉज कॉस्ट ही सब कुछ है। कॉस्ट मेरी परफेक्ट रहेगी तो मेरी प्राइसिंग परफेक्ट रहती है। अंडरस्टैंड? मैं पानी पूरी 30 रुपए में बेच रहा हूँ, पकड़ ले, पानी पूरी 30 रुपए में बेचता हूँ, तो 30 में इसलिए बेच रहा हूँ बिकॉज उसकी कॉस्ट 15 या 16 रुपए है, 20 रुपए है, बट मेरी कॉस्ट ही 30 रुपए है, तो मैं 30 का माल 30 में बेचूंगा, तो मैंने क्या कमाया फिर? एंड आई एम नॉट देयर टू डू एनी सोशल सर्विस, आई एम देयर टू अर्न मनी, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज नॉट रॉन्ग। ऐसा सबको कमाना है, कमाना ही चाहिए। तो मैं धंधा करने के लिए मार्केट में आया हूँ, मैं मेरा भला करने के लिए आया हूँ। हाँ, तेरा भला, मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा रखूंगा, बट मैं तेरे को सस्ते में नहीं दे सकता if my product has a quality. That's why costing becomes very important. Am I very clear with the initial explanation of the subject? Chapter की बात नहीं कर रहा हूँ, subject की बात कर रहा था मैं. Now if I go into the subject, now if I go into the chapter number 2, cost की classification करेंगे. My favorite example again, पकड़ ले हम shirts सिलाने वाले लोग हैं, we stitch shirts. पकड़ ले मैं रेमंड हूँ, रेमंड नाम सुना है गाइस? रेमंड का शर्ट्स नाम सुना है? बॉयज लोगों ने सुना रहेगा, गर्ल्स ने भी सुना रहेगा। बड़ा प्रीमियम इंडियन ब्रांड है सिंस 1925। रेमंड क्या बनाता है? शर्ट्स बनाता है ना। मैंने डिसाइड किया मैं रेमंड्स के शर्ट्स बनाऊंगा, तो या पकड़ ले मैंने खुद का फिलहाल शर्ट का फैक्ट्री डाल दिया। व्हाट इज द बेसिक कॉस्ट दैट आई विल रिक्वायर? रॉ मटेरियल क्या है? क्लॉथ। अगर मुझे धागा भी खुद की फैक्ट्री में बनाना है तो मैं कॉटन से काम चलवाऊंगा। कॉटन मंगाओ, उससे धागा बना, धागे से क्लॉथ बना, फिर क्लॉथ्स को कलर डाल, डिजाइन डाल, XYZ साइज के हिसाब से काट, इस्त्री कर, शर्ट इज रेडी, पैक करके। अगर ले फिलहाल मैं क्लॉथ मार्केट से मंगवा रहा हूँ, आई एम ब्रिंगिंग, जरा पानी आना। मैं क्लॉथ मार्केट से मंगवा रहा हूँ, तो मैंने क्लॉथ मंगवाया गाइस, दैट इज माय रॉ मटेरियल। आई एम आस्किंग यू, रॉ मटेरियल के बगैर कभी शर्ट बनेगा क्या? रॉ मटेरियल के बगैर कभी शर्ट बनेगा क्या? आई एम आस्किंग। नहीं, यू बेसिकली रिक्वायर रॉ मटेरियल। अच्छा, तेरे पास क्लॉथ आ गया, तेरे पास क्लॉथ आ गया। पार्थ अग्रवाल, तू उस दिन क्लास में था ना मेरे सामने? हाँ, अनम्यूट कर जरा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा तेरे को। इमेजिन, पार्थ अग्रवाल, तू उस दिन शर्ट पहन के आया था या क्लॉथ पहन के आया था क्लास में? शर्ट, टी शर्ट क्लॉथ नहीं पहना था। पहना था, मतलब मम्मी ने बोला कि मम्मी, तूने मम्मी को बोला मम्मी मेरे लिए एक शर्ट लाओ। मम्मी ने बोला ये देख क्लॉथ ले, ऐसे साड़ी जैसा रैप कर, पिन विन लगा के जा क्लास में। ऐसा करता है? नहीं। हाँ, साक्षी डे आपके डैडी शर्ट पहनते रहेंगे? वो शर्ट पहनते हैं या क्लॉथ ऐसे बदन को गोल गोल करके घूमते रहते हैं? शर्ट। शर्ट पहनते हैं। ऋषि परमार, आप शर्ट पहनते हो या मार्केट से सिर्फ कपड़ा लाते हो और उसको रैप करते हो, ऐसे सेफ्टी पिन वगैरह लगा के घूमता है तू? शर्ट पहनता है, क्लॉथ पहनता है? शर्ट। पक्का? क्या पक्का? वरुण, यू वेयर अ शर्ट और यू रैप अ क्लॉथ? शर्ट। वरुण बोलेगा सर क्लॉथ बहुत रैप किया तो मजा है, मस्त खुला खुला हवा आ रही है, टेंशन नहीं, मस्त। अफ्रीका के जंगलों में रहेगा तो हम क्लॉथ घूम लगा के घूम सकते हैं, बाकी लोग तो पत्ते लगाते हैं, हम तो एटलीस्ट क्लॉथ लगा के घूमेंगे अफ्रीका के जंगलों में। इंडिया में बड़ा फनी दिखेगा तू क्लॉथ पहन के मार्केट में घूम रहा है। क्या कामदार, बरोबर ना? क्लॉथ पहनता है। जरा जरा कैमरा नीचे ले, जरा पीछे का बैकग्राउंड ही ज्यादा दिख रहा है, जरा और नीचे ले। हाँ, अभी अच्छा दिख रहा है। क्या सी बना रहा है मेरे को? डैश डैश, सी फॉर उल्लू, उल्लू, सी फॉर उल्लू, सी फॉर वो तेरा बड़ा वाला सी नहीं रे बाबा, सी फॉर उल्लू। ये पार्थ कैसा बैठता है पता है? ऐसा पार्थ की स्टाइल ऐसी है। बाल दिखाओ प्रोफेसर को, ऊपर का पंखा दिखाओ, बाल दिखाओ, हाँ समझा, ऐसे मुंडी हिलाओ, बाकी कुछ दिखाने का नहीं। मेरे को क्या समझता नहीं है? 13 ईयर से पढ़ा रहा हूं मैं, डैश डैश। हाँ, 14th ईयर ऑफ माई टीचिंग चल रहा है। कूल। सो गोइंग अहेड, understand my dear friends that the main raw material that is required is a cloth, but हम क्लॉथ नहीं लगाते, बॉडी को क्लॉथ लगा के घूमते नहीं है।
हम उसको शर्ट में सिलाते हैं। नाउ क्लॉथ सिलाने के लिए एक दर्जी चाहिए तेरे को, टेलर मास्टर, यू एक्सेप्ट? या खुद ही खुद का शर्ट सिलवाने बैठता है? हाँ, ध्रुव की मम्मी बोलती है क्लॉथ लाया, ध्रुव ये ले सुई लगा, चल चालू हो जा। हाँ, एक उल्टी दोन सुल्टी, ऐसा करता है क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं करता ना। यू रिक्वायर अ टेलर मास्टर। बहुत लोग बोलेंगे सर हम तो डीजा रेडीमेड शर्ट लेते। एग्रीड। इवन इफ यू टेक अ रेडीमेड शर्ट, वो क्या डायरेक्टली मार्केट में पैदा नहीं हुआ है, वो किसी ना किसी ने तो सिलाया रहेगा। तूने भले रेडीमेड बाय किया, बट वो किसी ने तो सिलाया रहेगा। यू एक्सेप्ट? मुंडी लाओ। हाँ, मैंने रेडीमेड लिया, बट वो अबे रेमंड का तू रेडीमेड लेगा, वैन हुसैन, लुई फिलिप, पीटर इंग्लैंड, एरो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तू अगर ये रेडीमेड भी लेगा तो किसी ने तो सिलाया रहेगा उसको, बरोबर ना? दैट मीन्स यू रिक्वायर अ टेलर मास्टर। दैट टेलर मास्टर का खर्चा इज एन इंपॉर्टेंट खर्चा फॉर मेकिंग दैट। सो माय सेकेंड इंपॉर्टेंट खर्चा इज लेबर। पहला इंपॉर्टेंट खर्चा था रॉ मटेरियल्स, सेकंड इंपॉर्टेंट खर्चा इज माय लेबर, थर्ड इंपॉर्टेंट खर्चा, पकड़ ले, मैंने रेमंड्स की फैक्ट्री डाल दी रेमंड्स के नाम पे। रेमंड बोलेगा क्या रे, मेरे नाम से शर्ट बेचता है, डैश डैश के डैश, मुझे डैश दे, फिल दैट डैश, दे दे मेरे को डैश दे, फिल दैट डैश। रॉयल्टी। मस्त। क्या बोला बंदा? रॉयल्टी दे। रॉयल्टी दिए बगैर तू शर्ट बेच नहीं पाएगा, वो तेरे पे लीगल केस करेगा, तेरा धंधा बंद हो जाएगा। Because you are using my brand which has a value, bloody you pay me some amount of your selling price or some amount of something which is agreed upon as a royalty to me, तब जाके वो धंधा कर पाएगा तू। दैट मीन्स शर्ट बनाने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए, लेबर, रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नथिंग बट वो रॉयल्टी फॉयल्टी जो मैं पे करता हूँ। ये तीनों को मैंने समराइज किया ना गाइस, इफ आई समराइज दिस थ्री थिंग्स, रॉ मटेरियल्स, लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट बिकम्स माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉस्ट। भेजे में डाल देना, ब्लड में जाना चाहिए तेरे। आई रिपीट, इट हैज टू गो इन योर ब्लड। तेरे ब्लड के विटामिन और मिनरल्स में, अगर ब्लड निकाला तूने, निकाल मत, लेकिन गलती से निकाला, थोड़ा सा छुरी वुरी लिया, सर ने बोला एक्सपेरिमेंट करते, ऐसे काट डाला कचैक और ब्लड बाहर आया, उस ब्लड में तेरे जो विटामिन मिनरल जो भी पैदा रहेंगे उसको बाइफरकेट कर सकता है? कैन यू बाइफरकेट दोस थिंग्स फ्रॉम योर ब्लड? नो। सिर्फ कलर दिखेगा रेड है, बाकी कुछ नहीं समझेगा। दैट्स इट। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी, since you cannot distribute things which are there in your blood, has to go directly in your blood. Raw materials, labor and direct expense को हम बोलते हैं, these are nothing but called as elements of cost. क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर मैंने तेरे को नेक्स्ट लेक्चर में सवाल पूछा, बता एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, थ्रो ऑन माय माउथ, सर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीन बनते हैं मेरे मेन कॉस्ट। इसी को हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट गाइस? प्राइम कॉस्ट। सुना ही नहीं दिया? सब लोग अनम्यूट करके चिल्लाएंगे जोर से मेरे पे। 1 2 अनम्यूट, 1 2 3। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजे दे मेरे को, पढ़ाई के मजे लेने का। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। तेरे घर वालों को समझना चाहिए तू क्या बड़बड़ रहा है। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। घर को समझना चाहिए। शाउट, क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। पार्थ बोलेगा नेबर को नहीं, नेबर की बीवी को समझना चाहिए। बस बस बस, आगे मत जाओ। आई वोंट गो इन योर पर्सनल डोमेन। ठीक है ठीक है, ओके पार्थ, ओके ओके। अंडरस्टैंड दिस गाइस। प्राइम कॉस्ट उर्फ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में तीन, नंबर 1 इज डैश, फिल इट, अनम्यूट। नंबर 1 इज मटेरियल। रॉ मटेरियल, material. नंबर 2 इज लेबर। लेबर, नंबर 3 इज डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। याद रहेगा, याद रहेगा। व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। यू हैव अ राइट टू थिंक ऑन दिस फॉर 2 मिनट्स। मैंने जो अभी शर्ट का एग्जांपल दिया, किसी को कोई भी कितना भी वाहियात सा डाउट हो, शूट। आई डोंट लाइक यू हैविंग अ डाउट इन योर माइंड व्हेन यू से अ बाय टू मी। और अगर डाउट नहीं रहेगा तो तू 1 मिनट के लिए रिकैप मारेगा कि जयेश ने अभी क्या बड़बड़ किया। व्हाट Jayesh was talking
कि मैंने शर्ट सिलाया, ओके, रॉ मटेरियल लगा, ओके, लेबर लगा, दर्जी लगा, ओके, और रॉ मटेरियल के लिए रॉयल्टी लगा, ओके, वॉट एवर रॉयल्टी लगा. सो यू विल जस्ट do a recap. I'll keep my mouth shut for 2 minutes. Your time starts now. एक बार recap कर, फिर बात करते हैं. ऑल कूल गाइस, कोई दिक्कत नहीं आई? ग्रेट. अभी एलिमेंट्स को ना हम फर्दर तोड़ेंगे. अंडरस्टैंड नाउ. अभी एलिमेंट्स के बाद, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बाद कुछ और चालू होता है, इसको हम तोड़ डालेंगे. क्या रहता है चालू? डायरेक्ट मटेरियल, वॉट एवर मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल, उसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे. वन इज अ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर वन इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल. ना ध्यान से सुनना. वो अगर मैं शर्ट सिला रहा हूं, अंडरस्टैंड, इफ आई एम स्टिचिंग अ शर्ट गाइस, क्लॉथ इज माई डायरेक्ट मटेरियल. क्लॉथ के बगैर शर्ट नहीं बनेगा, बरोबर है? क्लॉथ के बगैर शर्ट नहीं बनेगा. लेकिन अंडरस्टैंड, एक मशीन पे मैं वो शर्ट बना रहा हूं, तो क्लॉथ इज माई डायरेक्ट मटेरियल. वो क्लॉथ मैं मशीन में डालता हूँ, मशीन एकदम सुपर हाईटेक है, वो खुद ही साइज के हिसाब से काटता है, स्टिच करता है, इस्त्री विस्त्री मार के रेडीमेड शर्ट बाहर आता है. 6 महीने हो गए मैंने मशीन की मरम्मत नहीं की थी. आफ्टर 6 months मशीन ने आवाज करना चालू कर दिया, खड़खड़ 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 खड़खड़. यार मशीन इज क्रिएटिंग हेल लॉट ऑफ नॉइज. मैंने बोला यार आई नीड टू गो एंड आई नीड टू फाइंड अ टेक्नीशियन हु कैन वर्क ऑन दिस मशीन सो दैट द वॉइस इज एलिमिनेटेड. टेक्नीशियन ने बोला क्या रे, 6 महीना मशीन की मरम्मत नहीं की? मैंने बोला नहीं की. बोलता है इसमें ना ये 3 लीटर ना तेल डालना पड़ेगा, तेल, ऑयल. वो नहीं डाला तो तेरा मशीन टूट जाएगा. मैंने बोला ओके डालो. बोलता है महंगा है, 5,000 रुपया लीटर का तेल है जो एरोप्लेन्स में यूज होता है. मैंने बोला कर भाई कर, 3 लीटर ना 15,000 का ही खर्चा होएगा. बट वो नहीं किया तो शायद 25 लाख का खर्चा करना पड़ेगा मशीन खराब हुआ तो उसने 15,000 रुपए का तेल डाला, तेल. अब एक बात बता, वो जो ऑयल है, ऑयल, उसका मेरे शर्ट से कोई डायरेक्ट संबंध है क्या? शर्ट पहनता है या शर्ट को तेल लगा के पहनता है? क्या रे हिमांशु? पहले शर्ट लेगा, उसके ऊपर कोकोनट ऑयल डालेगा, फिर बोलेगा अब पहनता हूं, मजा आएगा. हाँ, ऋषि परमार पैराशूट का कोकोनट ऑयल शर्ट पे लगा के पूरा फिर पहनता है या अच्छा शर्ट पहनता है? नॉर्मल, नॉर्मल शर्ट. तो तेल का और शर्ट का कोई संबंध है क्या? नहीं है. बट वो तेल नहीं डाला मैं मशीन में तो मशीन ब्रेकडाउन होगा. मतलब वो तेल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हाँ इंपॉर्टेंट तो है, बट उसका शर्ट से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है. सो वो जो रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्लॉथ इज माई डायरेक्ट मटेरियल एंड दैट ऑयल इज माई इनडायरेक्ट मटेरियल. मुझे वो 15,000 का खर्चा तो हुआ, मुझे वो 15,000 का खर्चा तो हुआ, एंड आई नीड टू रिकवर दैट 15,000 बाय सेलिंग द शर्ट्स. बरोबर है ना? मुझे वो शर्ट बेच के ही 15,000 रिकवर करना पड़ेगा. बट उस 15,000 का मेरे शर्ट से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था, इसीलिए वो जो ऑयल की कॉस्ट थी वो बन जाती मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट. समझा मैंने क्या बड़बड़ किया अभी? पक्का समझा? सो रॉ मटेरियल क्लॉथ इज माई डायरेक्ट कॉस्ट एंड ऑयल इज माई इनडायरेक्ट कॉस्ट. एम आई 5,000% क्लियर इनफ? मुंडी लाओ. वैसे ही वो जो दर्जी है ना, दर्जी, टेलर मास्टर जिसने मस्त शर्ट स्टिच किया, इज माई डायरेक्ट लेबर. वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेबर है मेरा, उसको मेरे को पेमेंट करनी है. लेकिन पकड़ ले, अपनी फैक्ट्री माटूंगा मैं जहाँ अपना क्लास है, और अपना सामान ना दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से निकला, क्लॉथ उत्तर प्रदेश से निकला और दादर स्टेशन पे आके रुका हुआ है. दादर स्टेशन से मुझे कूली करने पड़े फॉर ब्रिंगिंग दैट क्लॉथ टू माटूंगा. इमेजिन वेयर एवर फैक्ट्री इज. ठीक है, अपनी फैक्ट्री माटूंगा मैं, लेकिन माटूंगा तो थ्रू ट्रेन रुकते नहीं है, वो तो दादर में रुकते.
तो अपना पूरा सामान दादर में अनलोड हो गया, रेलवे स्टेशन पे पड़ा है। मुझे रेलवे स्टेशन से माटुंगा लाने के लिए कुछ कूली करने पड़े। एक बात बता, वो कूली तेरा शर्ट सिलाने का काम कर रहा है या हमाल का काम कर रहा है? रिपीट, आंसर कर मेरा सवाल। वो कूली शर्ट सिलाने का काम करेगा या हमाली करेगा? आई एम आस्किंग यू। He's doing his work, like भैया he's मैं not. हमाली बोलते हैं ना उसको, कूली। उसने बोला मैं तो बहुत नाटक करने लगा, ऐसा वैसा, मैं 25,000 रुपया लूंगा। मैंने बोला भाग, दादर स्टेशन से सामान लाने के 25,000, भाग। मैंने क्या किया, मैंने ऋषि, ध्रुव, वरुण, पार्थ, दोनों पार्थ, हिमांशु, सब फुकट लोग थे, उनको कोई काम धंधा था नहीं, फुकट थे सब, फुकट। वरुण भी फुकट था, आदि भी फुकट था। सबको 100-100 रुपया दिया, बोला एक काम कर, एक एक गोली लेके आ। सब लोग खुश, वाह वाह, मजा आया मजा आया, 100 रुपीज 100 रुपीज। लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को 200 चाहिए। मैंने बोला ले ले 200 ले चल। ऐसे करते मैं सबको 200 लेके 5,000 रुपये मेरा काम हो गया। एक बात बता, मैंने हमाल को रिप्लेस कर दिया मेरे स्टूडेंट्स के साथ और उनको पैसा दे दिया। वो हमाल मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बरोबर है। ही इज माई इनडायरेक्ट लेबर। वो नाटक कर गया, मैंने बोला चल तू चल भाग, तू नहीं तो कोई और सही। लेकिन मेरे टेलर मास्टर को मैं इतना इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके हाथ में जादू है, वो बरोबर स्टिच करता है। सो हु इज इंपॉर्टेंट, टेलर मास्टर या हमाल? ऑफ कोर्स टेलर मास्टर इज इंपॉर्टेंट। सो टेलर मास्टर इज माई डायरेक्ट लेबर एंड हमाल इज माई इनडायरेक्ट लेबर। वो जो इनडायरेक्ट लेबर है ना, उसको इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ। इमेजिन मेरा होटल है, मेरा मेन कुक है, मेन कुक वो मेरा डायरेक्ट लेबर है, लेकिन उसके अंडर ना 3 असिस्टेंट है। एक सब्जी काटता है, एक सब्जी को छांटता है, एक वो नॉर्मल बटाटा उबालने का काम करता है। वो मेन लेबर नाटक करेगा ना, उसको मुझे संभालना पड़ेगा। हाँ बाबा ले चल, 5,000 ज्यादा ले, काम कर चुपचाप। इनडायरेक्ट लेबर ना, सब्जी काटने वाला, आलू उबालने वाला, वो सब्जियां मार्केट से लाने वाला, इन्होंने नाटक किया, तू भाग चल, तू नहीं कोई और सही। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट लेबर एंड एन इनडायरेक्ट लेबर? डायरेक्ट लेबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट लेबर मैं बोलूंगा भाड़ में जाओ, रिप्लेस कर दूंगा, तूने नाटक किया तो। बिकॉज भारत में डायरेक्ट लेबरों की कमी है, इनडायरेक्ट लेबर भर भर के पड़ा है अपने पास। फुकट वेल्ले लोग बहुत सारे हैं, जिनको तू फुटी कौड़ी से छोटी छोटी वो तेरे लिए काम कर लेंगे। सो डायरेक्ट लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इज अ स्किल्ड लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का क्या हमाली करता है यार, नॉनसेंस, आई विल थ्रो हिम। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस गाइस? सो मैं अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल समझ, डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड एक्सपेंसेस ऑल्सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नाउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वही आता है, रॉयल्टी इज माई डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन इसके अलावा कोई आंडू पांडू खर्चा आया इज माई इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई रिपीट, रॉयल्टी इज माई डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन उसके अलावा कोई आंडू पांडू खर्चा आया तो वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अभी जो मैंने तेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पिपुड़ी बजाई सुनाई, दिस इज माई सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट या क्लासिफिकेशन बोलूंगा मैं। इसको मैं बोलूंगा नेचर ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ कॉस्ट। नेचर ऑफ कॉस्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इट इज माय नेचर ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या था? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अभी अंदर जा रहे, अंदर जा रहे। मटेरियल कैसा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर कैसा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंस कैसे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये क्या है? नेचर ऑफ कॉस्ट। Am I clear enough? Am I clear enough? यहां तक समझा सबको? पक्का वाला? कोई गड़बड़ नहीं? इतना सॉफ्टी सॉफ्टी जरा रीडिंग करते हैं। कम ऑन, पेज नंबर 28। नेहा गावणकर, कळलं का तुला? हो सर. ध्रुवी जैन, समजायू? Yes sir. Yeah. ऋषी पारमार, समजायू? Yes, sir. हाँ, मला सगळ्या भाषा येतात ना, हाँ आधीच सांगतोय। तो मेरे को गाली किसी हिब्रू बिब्रू भाषा में दे, गुजराती आती है मेरे को, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। गुजराती में गाली देगा ना मेरे को, समझ जाता है मेरे को। मराठी में तो मैं खुद ही देता हूँ, क्या बरोबर ना? बरोबर ना? बरोबर ना? ओके, ऑल कूल। सावला, समझायू? ग्रेट।
कौन वो पढ़ेगा मेरे लिए? उस दिन कौन पढ़ रहा था? एक मैडम जी पढ़ रहे थे। मैडम जी ऑफलाइन हो गए क्या? सर आप आपको पढ़ना है दिया? सर उस दिन मैं ही पढ़ रही थी। आप भी पढ़ रहे थे, आप पढ़ो चलो। क्लासिफाइंग द कॉस्ट, मैं सबको मौका दूंगा, डोंट वरी। Classifying cost. Cost can be classified in numbers of different ways. Element. Classifying cost as to whether they relate to material, labor, or expenses. This is useful for cost control. ये एलिमेंट थे, अंडरलाइन करना लेबर मटेरियल ओवरहेड को। Nature. Classify cost as to how they relate to production. Are they directly involved in the production of the product or services or indirectly involved in production? This is useful for cost accounting. Okay. Function. Classify costs based on whether they are production cost or non-production cost. This is useful for the financial accounts. Behavior. Classify costs based on how they change in relation to levels of output or activity. This Okay. is useful for budgeting and decision making. करेक्ट। इसमें किसी को कोई डाउट है? मैंने फिलहाल एलिमेंट और नेचर बोला हुआ है, बाकी जो अभी तक बात नहीं की। गो ऑन क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। फंक्शन और बिहेवियर आज ही करने वाला हूं मैं। गो ऑन क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, पॉइंट नंबर 3। Classification by element. To classify by element, you need to decide if a cost is a material cost, a labor cost, or a cost relating to something else, an expense. Okay, so now we will read on what is material cost. Fine. Material, all cost of material purchased for production or non-production activities. For example, raw material, components, cleaning material, maintenance material, and stationery. Okay. Labor, all staff costs relating to employees on a payroll of the organization. Underline करना, staff cost relating to employees on a payroll. Go ahead. Expense, all other costs which are not material or labor. This includes all brought in service, for example, rent, telephone, subcontractor, and costs such as the depreciation of equipments. Okay. एक बार ये वापस पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। all cost. All other costs which are not material or labor. This Underline includes करना, all other costs which are not material or labor. Underline this. जो मटेरियल और लेबर के अलावा है इसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। कूल, गो अहेड। This includes all brought in services, for example, rent, telephone, subcontractors, and costs such as depreciation of equipments. करेक्ट। इन सबको हम यू नो व्हाट इज डेप्री, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। तो ये सब अदर एक्सपेंस में आते हैं। 1 मिनट ले, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पूरा रीड कर, उसके बाद क्लासिफिकेशन बाय नेचर नीचे का रीड करते हैं। टेक अ मिनट आउट एंड रीड दिस गाइस। एक मिनट अच्छे से रीड कर इसको। कोई डाउट है मटेरियल लेबर एक्सपेंस में गाइस? एक और मिनट दिया, अच्छे से रीड कर। चलो, क्लासिफिकेशन बाय नेचर गाइस। इसमें डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो जो प्राइम कॉस्ट वगैरह बोला ना, वो आने वाला है इसमें। मैडम जी
Let us begin it. Classification by nature. Sir, I have a doubt. बोलो. So, what was the other name for classification of elements that you said? There is no other name. Element बोले तो material, labor and overheads या expenses यही आएगा. Okay. ठीक है, उसको कोई दूसरा नाम नहीं है. Let us proceed guys. Direct cost and indirect cost. मैडम जी पढ़ो, म्यूट पे हो आप. Direct cost are cost which A can bit be louder, be a bit louder. direct cost are cost which can be directly identified with a specific cost unit or cost center. Okay. There are three main types of direct cost: direct material, direct labor, and direct expense. The Okay. direct cost associated with a shirt cost unit manufactured by a clothing company would be direct material, cloth for making shirts. करेक्ट, Direct अंडरलाइन labor, करना. डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्लॉथ फॉर मेकिंग शर्ट्स. ओके. direct labor, the wages of the workers stitching the cloth to make the shirt. ओके. Direct expense, the royalty paid to the designer. ओके, रॉयल्टी को तो- अंडरलाइन करना गाइस. The total of direct cost is known as the prime cost. Wow, damn important. The total is called as the prime cost. Cool. Go ahead to the indirect cost. Indirect costs are the costs which cannot be directly identified with a specific cost unit or cost center. The Okay. indirect cost associated with a shirt cost unit manufactured by a clothing company would be indirect material. This Perfect. includes material that cannot be tracked to an individual item, traced to be an individual item, for example, cleaning fluids for cleaning the machineries. Indirect labor, the cost of a supervisor who supervises the shirt makers. Indirect expense, the cost of renting the factory where the shirts are manufactured. So there can be n number of examples of indirect material, indirect labor and indirect expenses. So in other words, you just need to understand that ये सबको हम overheads बोलते हैं. लास्ट लाइन देख लो. The total of indirect cost is known as overheads. ये नया शब्द है आपके लिए, बट ये पता होना चाहिए. All sundry expenses, आलतू फालतू खर्चे, इसको हम overheads बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Overheads. All good? So far so good? रिपीट करते हैं क्या क्या पढ़ा. What are the two main cost classifications that I taught you? I taught you what is element of cost and nature of cost. Element has three. First is raw materials. Second is labor. Third is expenses or overheads. Now इसमें nature क्या बोलता है? Bifurcate कर. Direct cost, indirect cost for materials. Direct, indirect for labor. Direct, indirect for expenses. 3 मिनट दिया आपको. 12:34 हो गया, मतलब 5, 6, 7 एग्जैक्टली 12:38 को मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा. क्लासिफिकेशन बाय नेचर 2-3 बार अच्छे से पढ़, कोई डाउट रहेगा तो पूछ. और उसके बाद मैं चाहता हूं, कैन यू सी देयर इज अ पेज 29 पे वैसा बीच में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक खुली हुई पुस्तक ओपन बुक का साइन है. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट ओपन बुक साइन? दैट ओपन बुक साइन का अर्थ होता है इट इज अ सेल्फ स्टडी. वो चीज मैं क्लास में नहीं रीड करता, वो बच्चों को रीड करने के लिए दिया है. हमारे सेशंस एक बार मैंने बैठा था, ट्रेन द ट्यूटर प्रोग्राम ऑफ एसीसीए, उसमें बोला था दैट व्हेनेवर इट इज एन ओपन बुक आस्क द किड्स टू रीड दैट ऑन देयर ओन. तो वो भी आपको पढ़ना है. आपका 3 मिनट चालू होता है अब. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. You can ask me any doubts after 3 minutes and not before that.
1 more minute and I'll start. Okay, let us begin to the next concept. Guys, अभी जो मैंने पढ़ा था, पहला क्या था? एलिमेंट. सर प्लीज कैन आई ड्रिंक वाटर एंड कम? या गो फास्ट एंड कम फास्ट. आई वेट फॉर 1 more minute. नेक्स्ट टाइम से सब थोड़ा मोड़ा बॉटल ना लेके ही बैठने का दोस्तों. और आज का Sir. लेक्चर छोटा है, बाद में मैं आपको बीच में 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा. हाँ बोलिए. Sir, I have a doubt in that oiling example you gave. बोलो. So if we did not do the oiling of machinery on time, it will definitely affect the production. And isn't it related Will to definitely direct affect the. expense? Production of the product? No, नहीं, the क्यों? machine will not work properly. So it नहीं, if it will oiling produce is less not product. done, then it will affect the production. Yeah. So If- wouldn't हाँ. it come under direct expense? डोंट थिंक फ्रॉम मशीन पे क्या इंपैक्ट होगा. ऑयल का और शर्ट का रिलेशनशिप समझो. आप ऑयल और मशीन का रिलेशनशिप जान रहे हो. ऑयल का और शर्ट का कोई संबंध है क्या? बिकॉज ऑयल इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल जो जरूरी है, बट शर्ट के लिए नहीं, मशीन के लिए. आप मशीन नहीं पहन रहे हो, आप शर्ट्स पहनते हो. इवन गर्ल्स वेयर टी शर्ट्स एंड ऑल. तो आप शर्ट पहन रहे हो, मशीन नहीं पहन रहे ना ऑयल पहन रहे हो. डू यू वेयर ऑयल? व्हाट नॉनसेंस. डू यू वेयर अ शर्ट? यस. सो शर्ट का और ऑयल का कोई संबंध है क्या? नहीं. दैट इज द रीजन ऑयल इज इनडायरेक्ट एंड रॉ मटेरियल इज डायरेक्ट. बिकॉज मशीनरी एंड ऑयल का रिलेशनशिप है, ऑयल एंड शर्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं. तो शर्ट इज डायरेक्ट मटेरियल लिंक्ड एंड ऑयल इज इनडायरेक्ट. शर्ट और ऑयल को कंपेयर कर, मशीन को हटा दे. Okay. मशीन इंपॉर्टेंट है, ऑयल इंपॉर्टेंट है मशीन के लिए, बट शर्ट से कोई संबंध नहीं है. इसलिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक्सप्लेनेशन था. यू कैन फर्दर आर्ग्यू विथ मी, नो प्रॉब्लम. यू गॉट व्हाट आई सेड? Yes, sir. पक्का? हाँ. ऑयल पर और sir, शर्ट का कोई machine. संबंध नहीं है ना मैडम जी, ऐसा सोचो. ऑयल एंड मशीन का संबंध है. वो ऑयल नहीं रहा तो मशीन टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, नुकसान ज्यादा है. तो ऑयल कंपल्सरी है. किसके लिए? मशीन के लिए, बिकॉज मशीन शर्ट्स बना रहे. यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गार्गी, गार्गी ने नेहा, सॉरी. Yes, sir. ऑल राइट दोस्तों, लेट अस गो टू द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉस्ट क्लासिफिकेशन विच इज कॉल्ड एज बिहेवियर ऑफ कॉस्ट. क्या बोलते हैं? बिहेवियर ऑफ कॉस्ट. नाउ मैं एक एक्सेल फाइल खोल रहा हूं फॉर सम एक्सप्लेनेशन. स्क्रीन पे ध्यान देना. या स्क्रीन पे ध्यान दो. कॉन्सेप्ट का नाम है वेरिएबल कॉस्ट. मैंने एक शर्ट बनाया तो मुझे कीमत आई 200 रुपया. 1 शर्ट कॉस्ट 200. तो गाइस अगर एक शर्ट 200 रुपया तो 10 शर्ट का कीमत हो जाएगा 2000. बरोबर है? 100 शर्ट्स अगर मैंने बनाए कीमत हो जाएगी 20,000. 1000 शर्ट्स बनाए 2 लाख. 10,000 शर्ट्स बनाए तो 20 लाख. और अगर 1 लाख शर्ट्स बना दिए तो 1 लाख इंटू 200 2 करोड़ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसमें मैं अभी कुछ इधर मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी,
इधर मैं लिख रहा हूं टोटल कॉस्ट, और इधर मैं एक तीसरा कॉलम बना रहा हूँ गाइस अभी, जिसको मैं लिख रहा हूं पर यूनिट कॉस्ट। कोट हो गया वो। स्क्रीन पे ध्यान देंगे। Now if you look at this chart guys, if you look at this chart, पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी? इट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। एम आई करेक्ट? पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। तो मैं ये फॉर्मूला सब जगह डालता हूं, मजा देख। अला ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सब जगह 200 आया, ये कैसे हुआ? अबे बरोबर है, टोटल कॉस्ट को तू क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो हर बार 200 ही आएगा। फॉर्मूला क्या है इसका? दिस डिवाइड बाय दिस। इसका फॉर्मूला क्या है? 2000 डिवाइड बाय 10। इसका फॉर्मूला क्या है? 20,000 डिवाइड बाय 100। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 लाख डिवाइड बाय 1000। तू कुछ भी कर, अबे पर यूनिट कॉस्ट तो सेम ही है। तो वेरिएबल कॉस्ट का एक फंडा है, इसलिए इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स, वेरिएबल कॉस्ट increases with the increase in the quantity, but per unit variable cost remains constant। क्या लिखा है मैंने? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जितना तू ज्यादा बनाते जाएगा, कॉस्ट वेरिएबल थी, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। दैट इज अ फीचर ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट। तू एक एप्पल ले या वॉटेवर, एक बॉटल बना, ये देख, ये मेरी बॉटल दिख रही है इधर पानी की, एक बॉटल बनाने का 100 रुपया, तो 2 का कितना? 200, 3 का कितना? 300, 4 का कितना? 400, 5 का कितना? 500, so on and so forth. But again the basic remains the same, 1 unit is 100 rupees, वो चेंज नहीं होगा। तो 1000 बना बॉटल, तो 1000 इंटू 100 इतना खर्चा लगेगा, बट द बेसिक रिमेन्स द सेम, 1 यूनिट इज कॉस्टिंग ओनली 100 रुपीज। इधर यही है, इसको इससे डिवाइड कर दो, 200 200 200 200 200। सो जितना ज्यादा बनाते जाएगा उतनी कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगी, बट ऑलवेज द प्रिंसिपल इज पर यूनिट कॉस्ट इज सेम। एम आई वेरी क्लियर विथ माई एक्सप्लेनेशन गाइस? एज अगेंस्ट फिक्स्ड कॉस्ट का फंडा देखते, मजा आएगा। वेरिएबल कॉस्ट के बाजू में ही करवाता हूँ कैलकुलेशन इसका। स्क्रीन पे ध्यान। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अभी मैं ये चार्ट ऐसे कैसे कॉपी करता हूं। यहां मैंने लिखा क्वांटिटी, यहां मैंने लिखा रेंट पर मंथ, बाकी का सब बाद में लिखता हूं मैं। नाउ इमेजिन मेरा रेंट पर मंथ है
2 लाख रुपया। जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, वॉट एवर विच एवर फैक्ट्री आई एम वर्किंग, वो फैक्ट्री पकड़ ले ऋषि परमार की है। ऋषि परमार की फैक्ट्री मैंने भाड़े पे ली, हमारा डील तय हो गया, पर मंथ मुझे 2 लाख चाहिए ना। आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन फॉर सम टाइम। ये सवाल मैं सबको पूछने वाला हूं, दिल दिमाग और फेफड़े खोल के बैठना। फेफड़े समझता है? फेफड़े, दिल और दिमाग तो समझता है, फेफड़े समझते हैं क्या? फेफड़े, फेफड़े बोले तो lungs, लंग्स। दिल दिमाग और फेफड़े खोल के बैठना। क्यों? पहले मैं कोविड के पहले सिर्फ दिल दिमाग खोल के बैठना बोलता था, अभी फेफड़े भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो गए। कोरोना किधर घुसता है पता है तेरे को? कोरोना डायरेक्टली फेफड़ों में घुसता है। आर यू अवेयर ऑफ दैट? लंग्स अच्छा लगता है, फेफड़ा बड़ा अजीब लगता है ना। दिल दिमाग और फेफड़े खोल के बैठना मेरा फेवरेट डायलॉग है। सो आई होप तेरा दिल दिमाग और फेफड़ा खुला हुआ है, एंड टेक होल हार्टेडली व्हाट इज कमिंग इन योर दिल दिमाग एंड फेफड़े। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। फिलहाल मैं ऋषि परमार से चालू करता हूँ। इमेजिन मैंने ऋषि परमार की फैक्ट्री भाड़े पे ले ली, और मैंने उस महीने, पकड़ ले नवंबर का महीना है, ऋषि की फैक्ट्री भाड़े पे ली, एंड इन द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर मैंने कोई प्रोडक्शन किया ही नहीं। सुबह जाता था, फैक्ट्री में जाता था, क्रिकेट खेलता था, घर आता था, फैक्ट्री में जाता था, क्रिकेट खेलता था, घर आता था। काम दिसंबर में चालू करना है, दिसंबर से शर्ट्स बनाएंगे। मैंने एक भी शर्ट नहीं बनाया। 30 नवंबर को ऋषि मेरे, मतलब उसकी फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर खड़ा है, बोलता है ए जयेश देना। मैंने बोला क्या देना? भाड़ा देना। क्या बोलता है ऋषि मेरे को? ए जयेश देना रे। मैंने बोला ए क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए? कैसे अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा है, ए देना है राजू देना। मैंने बोला ए क्या क्या चाहिए क्या तेरे को? बोलता है भाड़ा चाहिए, भाड़ा, आई वांट भाड़ा। मैंने बोला ई सुन ना डैश डैश, मैंने ना इस महीने कोई मैन्युफैक्चरिंग किया ही नहीं है, जीरो 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 शर्ट्स बनाए, तो तू रेंट मत ले। मैंने ऋषि को क्या बोला, नवंबर में मैंने कुछ फैक्ट्री में काम किया ही नहीं है, तो तू क्या देना देना कर रहा है बे, मत ले रेंट। ऋषि मैं तेरे को सवाल पूछ रहा हूँ, तू फैक्ट्री में खड़ा है दरवाजे के बाहर, मैं बता रहा हूँ क्या तू देना देना कर रहा है, मत ले रेंट, मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग किया ही नहीं है। ऋषि ने बोला ओके मैं घर जाता हूँ बाय। ऐसे करके ऋषि घर जाएगा। ऋषि बराबर ना? ऋषि यूज योर कॉमन सेंस। मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग किया ही नहीं, तो मैं तेरे को क्यों रेंट दूं? एम आई करेक्ट ऋषि? मैंने बोला चल भाग, कुछ नहीं दूंगा, भाड़ में जा। आई विल कम टू यू गार्गी, वेट। ऋषि अनम्यूट कर, तेरे को रेंट नहीं चाहिए, तू घर जा, ऐसे मैं तेरे को बोल रहा हूँ। घर जाएगा या तू बोलेगा चल भाई भाड़ा दे मेरे को मेरा? आवाज नहीं आ रहा है तेरा। भाड़ा 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 चाहिए तेरे को? अरे मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, जाना घर, इतना क्या नाटक कर रहे हैं? वो 2 लाख नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ता है तेरे को? गो होम, उड़, गो होम, उड़, कुछ नहीं दूंगा तेरे को, भाग, चल चल घर जा, कुछ नहीं दूंगा तेरे को, भाग। करेक्ट ना? घर जाएगा ना? ए क्या रे, चल घर जा। नहीं जाएगा, भाड़ा चाहिए तेरे को। 2 मिनट के बाद तेरे पास वापस आता हूँ। गार्गी इमेजिन फैक्ट्री तेरी है, कुछ मैंने नवंबर में काम नहीं किया, जीरो मैन्युफैक्चरिंग, तू मेरे घर के बाहर खड़ी है, फैक्ट्री के बाहर, बोलती है ए चिकने देना। मैंने बोला क्या चाहिए तेरे को? भाड़ा चाहिए, भाड़ा। मैंने बोला कुछ नहीं दूंगा, गेट आउट, उड़, भाग, कुछ नहीं दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग किया नहीं, दिसंबर में भाड़ा दूंगा, चल भाग। तू बोलेगी ओके मैं जा रही हूँ बाय। नहीं, इतना जोर से मुंडी हिला रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। भाड़ा चाहिए तेरे को? क्यों चाहिए भाड़ा? गो होम, आई विल नॉट गिव So एनी because भाड़ा। that was my factory that I gave you on rent, बट आई हैव and नॉट मैन्युफैक्चर्ड एनीथिंग ना मैडम जी। but that is regardless of what you did माय with गॉड, the. बहुत ही ज्यादा अकल आ गई है पैसे की मैडम जी को। दैट इज रिगार्डलेस ऑफ यू मैन्युफैक्चर और नो, मैं तो मेरा भाड़ा लूंगी। करेक्ट ना? तू भाड़ा लेगी मेरे से? मैं नुकसान में चला जाऊंगा तो भी भाड़ा लेगी? I'll give time, but I will take. नो No. मैं मतलब आपको नवंबर का भाड़ा चाहिए ही चाहिए ऐसा? Yes. अच्छा हिमांशु तेरे को भाड़ा चाहिए क्या? हिमांशु तेरे को बोला किसी ने कि तू पृथ्वी शॉ जैसा दिखता है? मैं बोल रहा हूँ तेरे को आज। दोस्तों इसको देखो जरा, जो क्रिकेट जिसको जो देखता है
डजंट ही लुक लाइक छोटा पृथ्वी शॉ? लगता है ना पृथ्वी शॉ जैसा ये बंदा। हिमांशु देख, पृथ्वी शॉ, तेरे को पता है हिमांशु मैं कौन से क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ? तेरा और उसका, फिर उसका छोटा भाई लग रहा है तू पृथ्वी शॉ का। तू भी विरार रहता है क्या? वो विरार रहता है, पृथ्वी शॉ। गाइस डोंट यू फील ही लुक्स लाइक नॉर्मल? रहे तेरी शक्ल नॉर्मल देख के कैमरा में देख, कितना पृथ्वी शॉ जैसा दिखता है। देख, पार्थ परमार लग रहा है ना पृथ्वी शॉ जैसा ये। हाँ चलो ठीक है, आज से आपका नाम पृथ्वी, हिमांशु पृथ्वी, समझा आपको? ओके गाइस, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऋषि परमार इज करेक्ट एंड गार्गी इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज इमटेरियल वेदर आई मैन्युफैक्चर और नो। वो बोलेगी तू कुछ भी कर, तू 1 बना, 2 बना, 500 बना या 10,000 बना, मेरे को मेरा 2 लाख चाहिए। ट्रू ना? सो इन एनी केस, अच्छा अगर दिसंबर में मैंने 5,000 यूनिट्स बनाए तो कितना भाड़ा दूंगा? मैं ज्यादा दूंगा या 2 लाख ही दूंगा? 2 ही लाख दूंगा। जनवरी में तो मैंने ज्यादा बना दिए, 50,000 यूनिट्स बना दिए। अब कितना? अब बोलेगी वो 20 लाख दे। मैंने बोला भाई 2 लाख का बात हुआ है, मैं 2 ही लाख दूंगा। मैडम जी बरोबर है ना? तू क्या बोलेगी? तू अंदर 1 यूनिट बना, 5 लाख बना, 50 लाख बना या 50 करोड़ बना, मुझे मेरे 2 लाख चाहिए, मेरे को 2 लाख से इंटरेस्ट है। ट्रू? बरोबर है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ मैं एक मैथ्स दिखाता हूं आपको, देख ले। अलग अलग महीनों में हमारा रेंट है, पकड़ ले। पहला रेंट नवंबर का है, दूसरा रेंट दिसंबर का है, तीसरा रेंट जैन फेब मार्च के रेंट है। मैंने पकड़ ले 1 यूनिट बनाया, 1 ही यूनिट बनाया नवंबर में। जैन में मैंने 100 यूनिट्स बना दिए या 10 बना दिए। फेब में मैंने नवंबर में 1, दिसंबर, जैन, फेब में मैंने 1000 बना दिए, फिर 10,000 बना दिए, फिर मार्च में मैंने 1 लाख बना दिए। जब मैंने नवंबर में, अभी मैं पर यूनिट रेंटल कॉस्ट निकाल रहा हूं, जरा दिल दिमाग फेफड़े स्क्रीन पे डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, पर यूनिट रेंटल कॉस्ट, एक शर्ट के लिए रेंट कितना लगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 यूनिट विच इज 2 lakhs। मेरे कान से धुआं निकलेगा। मैंने 1 यूनिट बनाया और उसके लिए मैंने 1 शर्ट बनाया नवंबर के महीने में, और मुझे 2 लाख रुपए का भाड़ा देना पड़ा। मेरे कान से ना लिटरली धुआं निकला हुआ है। आई एम इन अ प्रॉब्लम राइट नाउ, आई एम इन अ सुपर डुपर प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज 1 यूनिट बना के 2 लाख दे रहा हूं, मैं बड़ा तकलीफ में हूं। तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है 2 लाख, जो मेरा भाड़ा था, प्लस 200 जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट 200 है अपने शर्ट्स की, भूलना मत। सो ओवरऑल आई नीड टू सेल द शर्ट एट 2,200,000। कोई खरीदता है 2,200,000 रुपए का शर्ट? ऋषि परमार, आपका शर्ट 2,200,000 रुपए का है? पागल हो जाऊंगा मैं। 2,200,000 का शर्ट बनाऊंगा तो 2 लाख प्लस 200, 2,200,000 रुपया हो गया। लेकिन दिसंबर में मैंने 10 शर्ट्स बनाए। अब मेरे को पर शर्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? वो हो गई 20,000। कैसे? 2 लाख डिवाइड बाय 10, 20,000 होती है। 20,000 मुझे रिकवर करने पड़ेंगे पर शर्ट फॉर रिकवरिंग द रेंट ऑफ 2 लाख। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? पर शर्ट मुझे 20,000 रिकवर करना पड़ेगा, तब जाके मेरे 2 लाख वसूल होंगे, और 200 रुपया अलग। तो 20,000 प्लस 200, ये भी महंगा ही है। इतना महंगा शर्ट कोई नहीं पहनता, मैं तो नहीं पहनता, आप पहनते रहोगे कि पता नहीं। बट जैसे जनवरी में मैंने 100 शर्ट्स बना दिए, अब गेम थोड़ा मेरे कंट्रोल में आया हुआ है। अब पर शर्ट मुझे सिर्फ 2,000 रिकवर करना है, क्योंकि मैं 100 शर्ट्स बना रहा हूं। अब मेरे शर्ट की कीमत हो गई 2,000 फॉर फिक्स्ड कॉस्ट एंड 200 फॉर द वेरिएबल कॉस्ट। 2,200 का शर्ट मैंने लिया हुआ है गाइस, मैं लेता हूं। स्पाइकर का कभी लिया तो ये महंगा रहता है। अगर मैंने कभी एरो का लिया या रेमंड्स का लिया, ये 2,200 के ऊपर का शर्ट है, बट फिर भी आम आदमी के लिए महंगा है। बट जैसे ही फरवरी में मैं 1,000 शर्ट्स बनाऊंगा, अब 2 लाख डिवाइड बाय 1,000, गाइस द गेम इज कमिंग इन माय कंट्रोल नाउ। मुझे पर शर्ट सिर्फ 200 रुपया रिकवर करना है। मुझे 2 लाख रुपया रेंट भाड़ा रिकवर करना है, कितने शर्ट बेच के? 1,000 शर्ट्स बेच के। तो पर यूनिट मुझे कितना निकालना है? सिर्फ 200।
अब ये कंट्रोल में आ गया मेरे, 200 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 200 वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, 400 के ऊपर तो तेरा भी शर्ट रहेगा, मैं श्योर शॉट बोलता हूँ। कोई भी आजकल रास्ते का शर्ट नहीं बाय करता। तू एक अच्छे दुकान में जाएगा, 400 के ऊपर ही शर्ट रहते, गारंटी में बोलता हूँ। कोई भी फटा हुआ दूसरे का सेकंड हैंड शर्ट तो तू पहनेगा तो बात अलग है, विच आई एम श्योर यू वोंट। सो अभी 400, अभी गेम मेरे कंट्रोल में है। बट जैसे ही मैं 10,000 शर्ट्स मार्च में बना रहा हूं, अब तो मैं पूरा कंट्रोल में हूं मेरी दुनिया में। क्यों? मुझे पर यूनिट सिर्फ 2 रुपया निकालना है, सॉरी 20 रुपया निकालना है। 20 रुपया फॉर माई फिक्स्ड कॉस्ट एंड 200 इज कॉन्स्टेंट। 220 रुपए का शर्ट हो गया। बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैंने 1,00,000 शर्ट्स बना दिए। मां कसम, गेम पूरा कंट्रोल में है मेरे। अब मुझे मेरा लैंडलॉर्ड मेरे लिए कोई परेशानी करता ही नहीं है, उसको तो मैं छुट्टे देता हूँ 2 रुपया पर शर्ट। जैसे ही मुझे गार्गी दिखती है, गार्गी ले हट, 2 लाख 2 लाख ले, निकल जा, शक्ल मत दिखा, आउट। बिकॉज नाउ शी इज नो मोर अ प्रॉब्लम फॉर मी। मेरे फैक्ट्री में 1,00,000 शर्ट बन रहे हैं, मुझे सिर्फ 2 रुपया पर शर्ट खर्चा हो रहा है। अब मेरे शर्ट की कीमत है 2 + 200। अभी तो गेम मेरे पूरा कंट्रोल में। इसके बाद अगर बनाऊंगा तो 20 पैसा 0.2 आंसर आएगा गाइज। अगर मैंने 10 लाख शर्ट्स बना दिए तो 0.2 आंसर आएगा, 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। तब तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट कोई मायने ही नहीं लिखेगी। लुक एट द 2 कैलकुलेशंस व्हिच आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। मैं कुछ लिख रहा हूं इधर। फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन्स फिक्स्ड। अगर तू देखेगा रेंट पर मंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट 2 लाख। बट जैसे ही मैं क्वांटिटी बढ़ाना चालू करता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। वन मोर टाइम, फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन्स फिक्स। ये देख इधर कर्सर घूम रहा है, 2 लाख रुपया। गार्गी बोलेगी मेरे को मेरे 2 लाख से मतलब है, तू अंदर माल बना नहीं बना, मेरे को 2 लाख दे, मेरा मुंह बंद रहेगा। बरोबर है। फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन्स फिक्स्ड, बट फिक्स्ड कॉस्ट per unit decreases with the increase in the quantity. Wow, what a superb thing. Damn important. Fixed cost in totality remains fixed, but fixed cost per unit decreases with the increase in the quantity, which is proven in the chart which is right in front of your eyes. एक शर्ट बना, पर यूनिट रेंटल कॉस्ट 2 लाख। मेरे कान से धुआं निकल रहा है, विराट कोहली का भी शर्ट इतना महंगा नहीं रहेगा। क्वांटिटी 10 रुपया, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 20,000, ये भी बड़ा महंगा है। हाँ, विराट शायद 20,000 का शर्ट पहनता रहेगा, हम नहीं पहनते। 100 फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 2,000। चलिए मैं पहनता हूं, तू भी पहनता रहेगा, मैं श्योर हूं, लेकिन भारत की जनता नहीं पहनती। 80% इंडियंस आर पुअर, दे वोंट अफोर्ड 2,200 का शर्ट। शायद हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट जैसे मैं 1,000 के रेंज में आ गया, मैंने 1,000 यूनिट्स बना दिए। हाँ, 400 का शर्ट भारत देश में बड़ा बिकना आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने 10,000 बना दिया, फिक्स्ड कॉस्ट तो 20 रुपए पर यूनिट हो रही है, अभी तो बहुत कंट्रोल में आ गया है, 220 का कॉस्ट हो गया। एम आई वेरी क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन एंड द थिंग्स विच आर इन फ्रंट ऑफ यू? डैम इंपॉर्टेंट। एक भी बच्चे को ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट नहीं समझे है, then he or she will completely unmute and talk. Am I 5,000% clear enough? ये जो चीज हो रही है इसको हम बोलते हैं बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। 4 टाइप के बिहेवियर है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप लैडर कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल। उसमें से 2 हो गए, वेरिएबल एंड फिक्स तेरे सामने है एब्सोल्युटली विद एग्जांपल्स, मैंने पढ़ाया हुआ है। देख ले, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन होना चालू हो रहा है। जोरदार मुंडी हिलाओ जिसको समझाइए, जोरदार ऐसे से मुंडी हिलाओ, जोरदार मुंडी हिलाओ, समझा अच्छे से? आई वॉन्ट यू गाइस टू कॉपी दिस फॉर्मूलाज। एक बुक रखना, चैप्टर का नाम डालो, चैप्टर नंबर 2, और इधर हेडिंग ये लिखना जो मैं बोल रहा हूं, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर।
सब कुछ नहीं लिखूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवाऊंगा. स्टार्ट राइटिंग. मजा आ रहा है दोस्तों ये करने को? इजंट इट फन? मजा आया आपको पढ़ाई के मजे लेने का? याद रखना, कॉपी कीजिए ये. Let me know once you finish it. Let me know once you finish it. Huh?
हो गया? सबका हो गया? ऋषि आपका हो गया? Sir, 1 minute. होने के बाद हाँ लिखो, होने के बाद बताना मुझे। चलो, I think we will read this and then we will stop for today. Come on, page number 33. हाँ Sir, बोलिए। could you please re-explain what is fixed cost in totality? फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटालिटी मतलब पर मंथ 2 लाख रुपए का रेंट पे करना, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट इन Okay, sir. टोटालिटी। वो जो बीच वाला कॉलम है वो फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटालिटी है ना मैडम जी। एजी वाला जो कॉलम है जहाँ दो लाख लिखा है वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल। तो तू 1 शर्ट बना या 5 लाख शर्ट बना, मुझे 2 लाख चाहिए, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटालिटी इज सेम। आपको समझा मैंने क्या बोला? Yes, sir. Thank you. या गार्गी थी ना? Yes, sir. हाँ गार्गी, आप ही पढ़ो चलो। वेरिएबल कॉस्ट पढ़ो, विच इज ऑन पेज 33। Yes, sir. 1 minute. Variable costs. Variable costs are costs that vary in direct proportion with the level of activity. Underline that vary in the direct proportion with the level of activity. As activity levels increase, then total variable costs will also increase. Okay, as Variable. activity level increases, total variable cost will also increase. Absolutely correct. आगे Variable costs can be shown graphically. वो ठीक है, वो जरूरत नहीं, Note, नीचे के 2 बुलेट्स पढ़ना। note that as total costs increase with activity levels, the cost per unit of variable cost remain constant. ओके द थोड़ा जोर में पढ़ो, आपका आवाज नहीं आ रहा। देयर इज सम, या मेरे इधर पता नहीं। मैडम जी कौन पहले पढ़ रहा था वो पढ़ो, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। So पहले कौन पढ़ रहा था? can I retry speaking? या बी अ बिट लाउडर देन। Yeah. So 1 minute. Examples of variable costs include direct costs such as raw materials and direct labor. करेक्ट, बरोबर है। तो ये 4 पॉइंट्स देख लो एक बार। एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर। तो रॉ मटेरियल, लेबर, जितना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ेगा तेरा कॉस्ट बढ़ता जाएगा। एक शर्ट बनाने के लिए 200 रुपया रॉ मटेरियल्स एंड लेबर, 2 शर्ट बनाने का 400, 10 शर्ट का 2000, सो ऑन एंड सो फोर्थ। गो अहेड, फिक्स्ड कॉस्ट का पढ़ो पीछे थियरी, पेज 35 पे। Yeah. पेज 34 इज योर होमवर्क। A fixed cost is a cost which is incurred for an accounting period which within certain activity levels remains constant. ओके Fixed cost can be shown graphically. Then note that the total cost remains constant over a given level of activity, but that the cost per unit falls as the level of activity increases. एक्सट्रीमली Example, इंपॉर्टेंट लाइन, मैडम जी लाइन वापस पढ़ेंगे। yes. Note
that the total cost remains constant over a given level of ये देख, activity. टोटल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ये बीच वाला कॉलम, ये बीच वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, टोटल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, बट इट फॉल्स व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस. बरोबर है, धीरे 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 लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस. आई होप आई एम वेरी क्लियर. पढ़ो एक बार वापस ये नोट वाली लाइन. Note that the total cost remains constant over a given level of activity, but that the cost per unit falls as the level of activity increases. करेक्ट. एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आर, Examples of fixed cost: rent, business rates, executive salaries. करेक्ट. बस हो गया. एक बार ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मन में पढ़ लीजिए दोस्तों. आई वांट यू टू रीड दैट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन द माइंड. इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे. स्टेप लैडर कॉस्ट वगैरह क्या है वो, जो शायद अगले हफ्ते से फुल फ्लेज चालू होगा. अगले मतलब अगले, आज संडे तो आज का हफ्ता नहीं, इसके बाद वाले हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं. दो मिनट के लिए अच्छे से देख लो. अभी पूरा लेक्चर एक बार गो थ्रू करना. लेट मी नो यू हैव एनी प्रॉब्लम्स. ensure you go through the entire lecture and let me know you have any problems. I am stopping the screen. पूरा लेक्चर देख लो. कोई दिक्कत है क्या बताइए जो आज मैंने बड़बड़ किया. What are the elements of cost? Material, labor and expenses और overheads. फिर उसके बाद क्या पढ़ा? एलिमेंट्स के बाद नेचर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. याद आ रहा है? उसके बाद क्या पढ़ा? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. पूरा लेक्चर गो थ्रू कर लो. So effectively check page 28, 29 and 33 and 35. इस पे हमने पूरा चीज लिखा हुआ है, देख लो एक बार गाइस. अच्छे से समझा आज का सेशन जो हमने किया गाइस? हमने पूरा कॉस्ट का पोस्टमार्टम किया है, करेक्ट? वी डिड अ पोस्टमार्टम ऑफ द कॉस्ट. सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा रहेगा. ऑन दैट नोट, अभी मुझे पता नहीं हम कब मिलेंगे. आप आपका वो एफ ए क्लियर कर देना. आपको शायद
वो क्लास बोल रहा था कि इनके कुछ एग्जाम्स के लिए उनको छुट्टी देंगे बिकॉज बहुत सारे लोगों का एफए का पेपर बचा हुआ है, तो उसको क्लियर करो वरना ये चालू हो जाएगा तो वहां दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो यू विल गेट योर अनाउंसमेंट समवेयर इन द वीक्स। आज क्या है, 12-13 तारीख है ना कुछ, तो ये वीक छोड़ देना, आई डाउट आपको शायद छुट्टी मिलने वाली है थोड़े दिन के लिए, सो दैट यू क्लियर फोकस ऑन योर एफए एंड फिनिश दैट स्टडीज, सो दैट एग्जाम्स दो और हम फुल फ्लेज एमए में पहुंच जाएंगे। तो जिसको कुछ नहीं है, ऐसे भी बच्चे जिनको कुछ नहीं है, जैसे 2-3 बच्चे नए हैं, सो आई हैव गिवन देम समथिंग टू स्टडी, कीप रिवाइजिंग दिस थिंग्स। साउंड्स गुड। ऑन दैट नोट, मोटा मोटी मुझे लगता है 20-21 तारीख का जो हफ्ता है ना, वहां से फुल फ्लेज चालू होगा। ठीक है, चलो Sure. बाय गाइस, सी यू सून नाउ। So, हाँ actually, most of us are not giving the exams in this week, and because we are going to have our college exams next week, हाँ, so नो प्रॉब्लम, लेकिन आप प्रिपेयर करके रखना वरना बाद में वो टाइम भी नहीं मिलता। बिकॉज मैं फिर हफ्ते के 4 लेक्चर्स जब चालू कर दूंगा ना, आप प्रॉब्लम में फंसोगे, तो वो एक बार प्रिपेयर करके रखना इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू गिव इट नाउ ऑल्सो। okay. ऐसे ही मुझे बोला हुआ था कि इनको कुछ पढ़ाई करके इनको प्रिपेयर रखेंगे, ताकि बिकॉज व्हेन वन पेपर स्टार्ट्स ना, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू फोकस ऑन द अदर पेपर ऑल्सो। दैट थिंग कैन नॉट हैपन। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बाय गाइज, आपको अनाउंसमेंट क्लास से मैसेजेस पे आ जाएगा। हाँ चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय गाइज।